ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس حوالے کا ایک پورا کھلا میسج بھی دیا. تو ہم سارے دوست تھے, ہم سب نے مشورہ کیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں سب سے پہلے قدم اٹھانا ہے. ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں اس پہ دستخط ہمارے ساتھ ہیں. اس ساری دستخط جو ہمارے 14 آج موجود ہیں, یہ ہمارا وہ ہم خیال گروپ ہے جو پہلے دن سے ایک ساتھ تھا. آج ہم نے وہ پہلا قدم لیا ہے اور انشاءاللہ ہم اسی امید پہ ہیں کہ جو وعدہ ہم سے اس پلیٹ فارم پہ کیا گیا, انشاءاللہ اس میں اس تحریک میں وہ دوست بھی آئیں گے اور پھر مشترکہ طور پہ جو بھی ایک فیصلہ ہوگا, چاہے اس میں وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہو, حکومت کا ہو, اس کے طریقہ کار کا ہو, پھر یہ ساری جماعتیں انشاءاللہ مشترکہ طور پہ لیں گی اور آگے انشاءاللہ بڑھیں گی. یہ بڑا سٹیپ ہے سر. آپ نے جو پی ڈی ایم کی کمپوننٹ پارٹیز ہے جس میں بی این پی ہے, جے یو آئی ہے, اے این پی ہے, ان کو آن بورڈ لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ اے این پی تو خیر آپ کے ساتھ موجود ہے. ان دو جماعتوں کی بات دیکھیے, میں اس میں ایک بات پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ جب بلوچستان عوامی پارٹی اور ساتھ ساتھ سردار رینج صاحب اور باقی دوست, ہم جب اس تحریک کے حوالے سے ان سربراہوں سے جس میں میاں شہباز شریف, فضل الرحمان صاحب, ساتھ ساتھ زرداری صاحب تھے, ہم جب ملے تو ہم نے اپنا یہی بیانیہ رکھا اور اسی بیانی کے اوپر ہمیں یقین دہانی بھی اسی بات کی ملی کہ بلوچستان کے اندر اگر آپ سب تبدیلی چاہتے ہیں, اور وہ بھی چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک چیز بڑی ظاہر ہے کہ اس گروپ نے اس سارے تحریک میں تو ساتھ نہیں دیا, بلکہ وہ بلوچستان عوامی پارٹی کا یہ ہمارا موجودہ گروپ ہے جو سارے تحریک میں آگے تھی اور اسی ایجنڈا پہ آگے تھی کہ اس تبدیلی کو لانا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہم سے وہ وعدہ ہوا ہے, انشاءاللہ اس کو وفا کرنے کے لیے وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں. جام صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ 5 سالوں میں تیسری مرتبہ تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں, اس کے منفی اثرات بلوچستان پر, بلوچستان کی عوام پر نہیں پڑیں گے؟ یہ دوسری تبدیلی ہے. پہلی تو حکومت بنی, پھر ایک ہوئی ہی. دیکھیے ایک چیز میں سیاست میں ہمارے لیے یقینی طور پہ ایک بڑا لمحہ فکریہ بنتا ہے کہ جی اتنی تبدیلیاں دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ایسی سیاسی تبدیلیاں وزیر اعظم اور ایسی کابینوں میں بہت آتی رہتی ہیں. ہرگز یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ اگر بلوچستان یا پاکستان نقصان میں جا رہا ہے تو ہم کہیں کہ ہو بہو ایک ہی حکومت 5 سال پوری کرے. ہاں, 5 سال کی مدت کو ایک ٹینیور کو پورا ضرور کرنا چاہیے. اس میں اگر 2 وزیر اعلیٰ بنتے ہیں, 3 بنتے ہیں, 3 وزیر اعظم بنتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں, 5 سالہ اس اقتدار کو ختم نہیں کرنا چاہیے. 5 سال کا ٹینیور ہے. اور آپ دیکھیں, آپ میڈیا کے دوست گواہ ہیں, ہم نے کئی بار اس حکومت کو بار بار کہا کہ آپ کے کئی اقدامات ایسے ہیں جو کہ بلوچستان کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے اور ہمیں وہ سیریسنس نظر نہیں آ رہی. تو کیا ہم 1 سال 1.5 سال مزید برداشت کریں؟ ایک بجٹ آنے والا ہے, بلوچستان کے نوجوانوں کی نوکریوں کا مسئلہ ہے, یا ترقیاتی کاموں کا مسئلہ ہے, یا وفاق سے اپنی چیزوں کو منوانے کا مقصد ہے. اگر یہ نان سیریس گورننس کے ساتھ اگر ہم نے برداشت کرنا ہے تو باقی برداشت کر لیں. کم از کم ہم جو متفقہ طور پہ سارے دوست ہیں, ہم اس بات پہ راضی نہیں. سردار صاحب سے وہ لگائے جا رہے ہیں جو آپ کی خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی تب تھے, ہم اسے صحیح سمجھے, آج صحیح سمجھے, یا اسے انا کی جنگ سمجھے؟ صبر, میرے خیال میں آپ کو سوال کرتے ہوئے سمجھ نہیں آئی. ایگزیکٹلی میں تردید کرتا ہوں, ریکارڈ ہے, آپ ہمیں ثابت کر کے دیں کہ ہم نے یہی الزامات جام صاحب پہ لگائے تھے. جام صاحب کے ساتھ ہمارے اختلافات تھے, اس وقت بھی ہم نے کوشش کی, 3.5 سال تک ہم نے برداشت کیا, جام صاحب کو ہم بتاتے رہے, مگر بدقسمتی سے حالات آخر اس نہج پہ پڑے کہ ہمیں ایک تبدیلی کے لیے اسٹرگل کرنی پڑی. مگر وہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جو کام جام صاحب کے وقت میں نہیں ہو رہے تھے وہ اب ہونے چاہیے. مگر وہاں جام صاحب, اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو جام صاحب ہمیں فرشتہ نظر آتے ہیں. جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے, جس طرف کی یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اور بیڈ گورننس کا جو ایگزامپل یہاں دیے جا رہے ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت ایک بہت بہتر گورنمنٹ تھی, مگر ہماری, کیونکہ ہم سیاسی لوگ تھے, ہم عوام سے وعدے کر کے آئے تھے, عوام سے کمٹمنٹ کر کے آئے تھے, اس کمٹمنٹ کو نبھانے کے ہم پابند ہیں. تو اب بھی ہم جو لا رہے ہیں, ہمیں کوئی قدو صاحب سے کوئی ذاتیات نہیں ہے, مگر ان کے طرز حکمرانی پہ ہمیں اعتراضات ہیں. تو میں تھوڑا ریکارڈ واضح کر دوں, ہم نے کبھی بھی جام صاحب پہ کرپشن یا آنیسٹی
पे कभी भी सवाल नहीं उठाए थे। सर एसडीपी का पोजीशन क्या है? सरदार साहब की जो तहरीक इंसाफ है उसका बयानिया जो है इमरान खान के साथ आपका वकील के या आपका पीडीएम के साथ बयानिया वो हो रहा है। बलूचिस्तान में सूरत हाल आपके हाथ में, आप पार्लिमानी लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, और कितने लोग आपके साथ हैं? इंशाल्लाह वो अभी थोड़ा सा टाइम है, आपने अब देख लिया कि कितने लोग मेरे साथ हैं। इस वक्त मैं पार्लिमानी लीडर हूँ, और सबसे बड़ी बात कि अगर इमरान खान का जो बयानिया था मैं उससे इत्फाक करता तो मैं अपनी एडवाइजरी से स्पेशल असिस्टेंट होना प्राइम मिनिस्टर के मैं क्यों रिज़ाइन करता। तो इसका मकसद ये है कि खान साहब के साथ उस वक्त से हमने कोशिश की, स्ट्रगल की, और बलूचिस्तान की एक पार्लिमानी पार्टी, एक काउंसलर की पार्टी से उठा के हमने उसको पार्लिमानी पार्टी बनाया, दोस्तों को जमा किया हमने। मगर इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादती की बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान के अवाम से। उन लोगों को सिर्फ लोगों को टीवी पे दिखाने के लिए चंद बलूचिस्तान के लोगों को लाए, बलूचिस्तान के अवाम। और मुझे अफसोस है कि पीटीआई के वो वर्कर जिन्होंने 20-20, 25-25 साल पीटीआई के लिए सर्व किए, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। और मुर्गे और कट्टे भी हैं ना, वो जो है ना यहाँ के जो खान साहब के जो चहीते हैं, जो उनको कहता है ये मेरे टाइगर्स हैं, वो खा गए थे, अवाम तक नहीं पहुँचा। देखिए मैं आपको बात बताऊँ, ना हमने कसम किया है ना कुरान किया है। इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने पे और अपने ख़ानदान की रवायतों पे फ़ख्र है कि जो बात मेरी ज़बान से निकलेगी इंशाअल्लाह ताला वो कसम और कुरान पे भी वही होगी जो मैं कमिटमेंट करूँगा अपनी ज़बान पे। जिनके आपके जो साथ खड़े हैं वो उनको फंड देने में इंतजार करते, जैसे लिदी साहब ने कहा कि उनको फंड ना मिले, तो वो जमातें किस तरह साथ देंगे? उसी के साथ ये सवाल है कि आपकी हुकूमत जब आपकी खत्म हुई थी तो वो इत्तेहादियों के रवैये की वजह से नहीं हुई थी, वो आपकी अपनी पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात थे, वो आज भी बदस्तूर कायम है। 16 अरकान ने पार्लिमानी लीडर बनाया है कुदूस बदीलियों को, और अब आप अपने जो साथ अपनी स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, इत्तेहादी तो वही जो पहले भी आपके साथ खड़े थे। तो इसका मतलब कि जिन पर आपके इल्जामात थे, जिनकी वजह से बलेदी साहब ने भी इख्तिलाफ किया, तो क्या उनको वापस शामिल करके हुकूमत बनाएंगे? देखिए मैं बार थोड़ा मैं एक दफ़ा ये जवाब दे दूं ताकि थोड़ा फिर याद नहीं रहेगा। देखिए एक चीज़ मैं कंप्लीट साथ साथ ये करता रहूं कि मैं शायद आप मेरी पहली वाली बात पे गौर नहीं कर रहे कि जिस अपोजिशन की आप बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पे हमारे हुकूमत के जाने से पहले हम अपोजिशन में उनके साथ थे, लेकिन जब हमारी हुकूमत गई और ये सिलसिला तकरीबन कोई 4-5 महीने के लिए आगे बढ़ा, तो आपने बाद में देखा होगा कि यही हमारा ग्रुप था। फिर वो पीडीएम के साथ मिली और फिर हमने अपने जो सारे मौक़िफ़ है उसको पेश किया, और हमारे प्रेस को आज भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो मेंबरान हैं वो वफाक में उन्हीं जमातों के साथ वहाँ हुकूमत में है जिनकी बात आप यहाँ कर रहे हैं। तो हम तो उसको अपोजिशन की जमात नहीं मान रहे, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त हम अपोजिशन उस जमात को समझ रहे हैं जो साहिब इक़्तिदार है। बाकी तो हम सारे एक साथ हैं, बस हमने वो एक लाएमल को तय करना है और उस पर काम करना है। देखिए एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि यकीनी तौर पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर आज भी देखिए उन्होंने ये जब 6-8 महीने का अरसा गुजरा है, तो हमने ये दोस्तों की सारी चीज़ें इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आज ये कदम उठाया है। अगर आज हमारे साथ लोग ना हो या उनके ख्वाहिशात हमारे साथ ना हो, तो ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि हम अदम एतमाद पेश करें, इस तरह पेश करें। तो दोस्तों का मशवरा है, दोस्तों का साथ है, और हमने ये पहला स्टेप लिया है। और इंशाल्लाह देखिए मैं उस बात को दोहराऊँगा, कुदूस बिजंजो साहब यकीनी तौर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक मेंबर हैं, एक एमपीए हैं और वज़ीर आला हैं, लेकिन कुदूस बिजंजो साहब के साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी हर हवाले से, जो बार बार हमने उनको कहा कि वो पूरी होनी चाहिए। और वो क्या थी? बलूचिस्तान में एक अच्छे तर्ज अमल की हुकूमत को कायम करना, दोस्तों को ले जाना। दोस्त ने किसी ने बात की कि आपसे एतराज़ था कि आप कम मिलते थे, मैंने कहा कम मिलना फिर भी अच्छा है, ना मिलना ना होना और उससे भी ख़राब है। तो बात यह है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के हर हवाले से एक नई बात ये भी दूसरी जानिब लाहौर में फवाद चौधरी मीडिया से मुखातिब हैं। अगर कोई इराकी रुकन जो है वो पार्लिमानी पार्टी के हेड के ओपिनियन के ख़िलाफ़ या उसकी जो हुक्म है उसके ख़िलाफ़ वोट देगा तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। अच्छा, ये बहुत अहम फैसला है पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का। इसके नतीजे में लोटाक्रेसी का ख़ात्मा हुआ, इसके नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वापस आया है। अच्छा, अब इस फैसले के नतीजे में
25 अरकान जो पंजाब असम्बली के हैं उनका जो वोट है वो माइनस हो गया है हमज़ा शरीफ के वोटों से। लिहाजा इस वक्त की जो नंबर गेम है उसमें जो अपोजिशन है जो मौजूदा जिसको PTI लीड करती है और PMLQ उसका हिस्सा है, उसके पास 173 वोट हैं और हमज़ा शरीफ के पास इस वक्त 172 वोट हैं। और जो पहला इलेक्शन का हिस्सा है वो पहला इलेक्शन आइन के मुताबिक अब ख़त्म हो चुका है। अब ये कल मैंने किस तरह किया था कि हमज़ा शहबाज को इस फैसले के बाद खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, क्योंकि पिछला 1 महीना पूरा नून लीग ने हमें ये भाषण देते हुए गुजारा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर जो है वो किस तरह से अमल ना करके आइन शिकनी के मरतकब हुए हैं। अब कल से अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ख़िलाफ़ बतौर वज़ीर आला यहाँ पे बराजमान हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप पहले तो काबीना नहीं बना सके, लिहाजा अब तक आपके तमाम इंतज़ामी फ़ैसले मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस के जो रेशो सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस में जो असूल तय किया हुआ है उसके ख़िलाफ़ आप हुकूमत चला रहे थे। सो तमाम इंतज़ामी फ़ैसले आपके गलत हैं और आपको उनके लिए लायबल होना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि इस वक्त नंबर आपका अपोजिशन से कम है, तो आप खुद ही कुछ जो है वो कोई शर्म का मुजाहरा करें और इस्तीफ़ा दे दें। तीसरी सूरत यह है कि गवर्नर पंजाब जो है वो इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहें। अब ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि आपका गवर्नर ही नहीं है। उमर चीमा जो एक लीगल गवर्नर हैं उनको एक जॉइंट सेक्रेटरी के अहकामात के तहत सस्पेंड कर दिया गया है। नया गवर्नर जो है वो उसने चार्ज नहीं लिया, आपके पास गवर्नर नहीं है। लिहाजा हमने फ़ैसला ये किया है कि कल अदालत आलिया में ये पटिशन फ़ाइल की जा रही है कि हमज़ा शहबाज जो हैं वो एक इल्लीगल तरीके से वज़ीर आला हैं और इनका कोवरेंटो की रिट जारी की जाए और हमज़ा शहबाज को वज़ारत आला से फारग किया जाए और पाकिस्तान यहाँ पंजाब में एक नया इलेक्शन जो है वो कराया जाए। नए इलेक्शन के नतीजे में परवेज़ इलाही इंशाअल्लाह दोबारा जो है वो चीफ मिनिस्टर मुंतखब होते हैं। सो जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसके ऊपर मनोअन अमल करने की ज़रूरत है और उसका वाहिद हाल यही है, हम चाहते तो स्पीकर जो था वो आज ख़ुद भी ये नोटिफिकेशन जारी कर देता और कह देता कि ये नहीं है, लेकिन उसकी भी एक लीगल जो है वो चलनी थी। तो हमने ये बजाय इसके कि हमने फ़ैसला किया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने के बजाय हम खुद ही अदालत से रजू करें और अदालत से ये कहें कि वो इसके ऊपर एक कोवरेंटो की पटिशन करके और हमज़ा शहबाज को ओहदे से फारग करें। मुझे उम्मीद ये है ये पटिशन सुबह फ़ाइल होगी और इसके ऊपर अहकामात जल्दी होने चाहिए। इस वक्त पंजाब में, वैसे तो पूरे मुल्क में ही कोई हुकूमत नहीं है, आप देख लें आज डॉलर जिस तरीके से 200 रुपये के ऊपर चला गया है, हमारी मईशत की बिल्कुल तबाही उतार दी है इन्होंने 40 दिनों में। ये तो ऐसे ही है कि जैसे डाकू जो हैं वो घर में घुस जाएं और चंद घंटों में घर का सफाया कर दें। ये तकरीबन पाकिस्तान के साथ यही हुआ है। अच्छा खासा एक पाकिस्तान मुस्तहकम मजबूत पाकिस्तान इन नालायकों के हवाले हुआ और चंद घंटे में इन डाकुओं ने पूरे इस घर का बेड़ा गर्क कर दिया और ये जो है वो सारा इसको जो है वो खा गया। अब उसके बाद जो अगली मरहला हमारा है उसमें हम ये समझते हैं कि पूरे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए और इन इंतखाबात की तरफ जल्द बढ़ने की ज़रूरत है। इस वक्त जो नंबर गेम सेंटर में है वहाँ पर भी सदर ममलिकत जो हैं वो किसी भी वक्त जो शहबाज शरीफ है उनको एतमाद के वोट के लिए कह सकते हैं। 172 वोट इस वक्त शहबाज शरीफ के पास भी नहीं है। सो मेरी नज़र में ये जो हमारा कुछ लोग जो ये जो बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं कि नहीं हम इकॉनमी ठीक कर लेंगे, इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान का बुनियादी जो इस वक्त बहरान है वो सियासी है। जब सियासी बहरान ठीक होगा तो आपका मुआशी बहरान ठीक होगा। इमरान खान को जिस तरीके से एक गैर कानूनी इंटरनेशनल ख्वाहिश चढ़ाया गया उसका नुकसान पाकिस्तान भुगत रहा है और ये बहरान उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आपका सियासी बहरान हल नहीं होता। और सियासी बहरान हल करने की वाहिद सूरत जो है
वो इंडिपेंडेंट इलेक्शंस हैं और जितनी जल्दी हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे उतनी जल्दी स्टेबिलिटी आएगी। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि पंजाब के अंदर हुकूमत साथी इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरजीह है या लॉन्ग मार्च के नतीजे में एक नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान बड़ी तरजीह है? नहीं, हम तो इलेक्शंस ही चाहते हैं, हम चाहते हैं इलेक्शंस की तरफ बढ़े और इसका आसान तरीका यही है कि जो भी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होगा वो असम्बली की डिसोल्यूशन की तरफ जाए। सो पहला मरहले में आसान यही लग रहा है कि आप अपना चीफ मिनिस्टर बनाएं और वो डिसोल्यूशन करें। परवेज़ इलाही साहब से इस पर बात हो रही है, वो एग्री है इस बात पर? उन्होंने यही कहा है कि जो भी इमरान खान फैसला करेंगे वो उसके बाद। साहब ये बताएं कि पंजाब को 2 ऑफिसर चला रहे हैं, एक चीफ सेक्रेटरी और एक आईजी पंजाब है। पहले तो ब्यूरोक्रेसी को पीटीआई क्या मैसेज दे रही है इस अदालती फैसले के बाद, और दूसरा ये जो अदालती आप जा रहे हैं कल पिटीशन में, इसमें काम के लिंगर ऑन होने के कितने चांसेस हैं? देखिए ये तो अब मेरी ख्वाहिश जो चीफ जस्टिस हैं उनसे मेरी दरख्वास्त यही होगी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कि इतना बड़ा सूबा जो है वो हुकूमत के बगैर तो नहीं काम कर सकता, लिहाजा इसको डे टू डे आप सुन के जो है वो इसको जिस तरह से अब तो आपको पता ही अदालतें 24 घंटे खुली होती हैं, तो इसको जो है वो पूरा आप सुने और जल्द अज जल्द इसका फैसला करें ताकि इस बहरान का खात्मा हो। जहाँ तक चीफ सेक्रेटरी और आईजी का ताल्लुक है, मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ, वक्त बदल रहा है, वक्त बदल गया है, लिहाजा बदले हुए वक्त के मुताबिक आप मेरिट के ऊपर वापस आएंगे और जो फैसले भी आपने किए हैं जो मेरिट से हट के किए हैं उसको आप रिवर्स करें जल्द अज जल्द। ये जो आप इस वक्त तब्दीलियाँ और तैनातियाँ एक इलीगल चीफ मिनिस्टर के कहने के ऊपर कर रहे हैं, ये इस वक्त कानून के मुनाफी है और अगर इसको जारी रखा गया तो हम इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो साहब ये बताइएगा, माजी में हम सुनते हैं एस्टैब्लिशमेंट जो है वो दबाव दे रही है हुकूमत को कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाए जाएं, आप इस खबर को कैसे देखें? देखिए जी, मुझे नहीं पता एस्टैब्लिशमेंट दबाव डाल रही है कि नहीं, लेकिन हर वो शख्स जिसके दिल में पाकिस्तान का दर्द है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, तमाम लोग जो हैं वो इसी पे उनका कंसेंसस है कि जल्द इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान के आइनी और सियासी बहरान का कोई हल नहीं। साहब माजी में हम सुनते आए थे तालिबान के हवाले से बैड तालिबान और गुड तालिबान, अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हवाले से एक नई इस्तिलाह आई है बैड डिसीजन और गुड डिसीजन, ये कब तक सियासी जमातें करती रहेंगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि बड़ी आपने एक फजूल जो है वो एग्जाम्पल दी है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ही होते हैं, कोई फैसले सही होंगे, कोई फैसले गलत होंगे। जिन फैसलों मसलन अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के फैसले को आप सही मान के चलेंगे तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग ख़राब है। तो जब भी आप ये बात करेंगे, इदारों के ऊपर हर एक का ट्रस्ट होता है, इदारों के बगैर तो मुल्क नहीं चलते, लेकिन ये होता ये है कि कभी फैसले सही होते हैं, कहीं गलत होते हैं, जो गलत होते हैं उन पर तनकीद होगी, जो सही है उनको अप्रिशिएट। वास्तव में इस बात का कितना चांस है कि जो एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गी हुई थी अब उसमें कोई रवाबत की बहाली का इम्कान है? इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए उसके बाद से जो है वो रवाबत से का कोई मसला नहीं है और किसी से भी कोई मसला नहीं है। हम तो समझते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इनके ऊपर भी बात हो सकती है, इसके ऊपर भी बात इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और उन पर भी बात हो सकती है, लेकिन पहली शर्त ये है कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें जो कि प्रेफरेबली सितंबर में होनी चाहिए और सितंबर में ही एक्चुअली इलेक्शन होने चाहिए। हाँ जोई साहब ये बताएं कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उसको तो किसी किस्म का ये लग नहीं रहा जेस्चर के वो इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही है, तो आप ये मुतालबा तो कर रहे हैं और वो इस वक्त जो पीटीआई का मोमेंटम है उसको तोड़ना चाहते हैं और ताकि ये लिंगर ऑन हो मामला, तो ये कैसे आप आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे? जिन टांगों के ऊपर वो खड़े हैं उस टांगों से तो मेरा ये ख्याल है कि वो खड़े ही रहना बड़ा उनके लिए मुश्किल है, उन्होंने पीटीआई की टांगें क्या तोड़नी है। तो पहली बात ये है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और ये सब ने इन्होंने जो चूरन बेचा था उससे जिसने वो चूरन खाया उसको बदहज़मी हो गई और ये सिलसिला आपको पता है नहीं चल पा रहा। पाकिस्तान का इन्होंने अलबत्ता हमारी मईशत का भट्टा बिठा दिया और ये जो सारे इस वक्त कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं ये इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि हमें ला के किधर बिठा दिया। सो ये इस वक्त आखिरी दिन चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसको ये हुकूमत जो है इसको खुद ही मान जाना चाहिए, ज़्यादा ये बताइएगा कि सीएम के लिए तो आप कोर्ट में रिट करने जा रहे हैं, पंजाब के गवर्नर की क्या आईनी हैसियत है और सीएम को कौन कहेगा कि वो एतमाद का वोट ले? गवर्नर जो है उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन जो है वो फाइल कर दी है और ये सुबह हो रही है और इस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो सदर ममलिकत के प्रोक्लेमेशन को रद्द नहीं कर सकता था,
So I hope कि उमर चीमा will be back इंशाल्लाह गवर्नर हाउस चूरन की बात की है तो चूरन के 2 कलर होते हैं, एक काला चूरन और एक जो है वो समझ लो खाकी चूरन है। इन्होंने कौन सा चूरन देखा, काला चूरन या दूसरा? आपके चूरन के ऊपर इल्म से मुझे लगा कि आप हकीम भी हैं। Thank you. PTI के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरा नून लीग भाषण देती रही कि हम अदालती अहकामात नहीं मानते। अब कल से हमजा शहबाज वज़ीर आला की नशिस्त पर बराजमान हैं। इस वक्त नंबर्स गेम अपोजिशन से कम है। और इमरान खान की मुल्क भर के वकला को हकीकी आज़ादी की तहरीक में शामिल होने की दावत। लाहौर बार से खिताब में कहा, पाकिस्तान की तारीख है, जिस तहरीक में वकील शामिल ना हो वो कामयाब नहीं होती। सबको इस्लामाबाद आने की दावत दे रहा हूँ। हुकूमत हमें रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगी, इसलिए मुझे वकला की ज़रूरत है। अमरीकी साजिश के तहत चोरों और लटेरों को ऊपर मुसल्लत किया, हम इसको मुस्तरद करते हैं, गुलामी नामंजूर करते हैं। इस्लामाबाद में मैं सबको दावत दे रहा हूँ, जुमे को मुल्तान के जलसे में मैं आपको डेट दूंगा। ये जो लोग हमारे पे मुसल्लत किए गए, ये हर हरबा इस्तेमाल करेंगे हमें रोकने के लिए। इसलिए मुझे आपकी जरूरत है, अपने वकीलों की जरूरत है। FIA 24 अरब रुपए के शहबाज शरीफ और इसके बेटों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस कहते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि वो खुद आके FIA के ऊपर बैठ के अपने केसेस खत्म करे। ये अगर आप इतने बड़े डाके को इजाजत दे देंगे तो फिर पाकिस्तान के जेल खोल दे। ये जो तहरीक शुरू हो रही है, ये इन चोरों को हमेशा के लिए दफन करने के लिए और अमेरिका की गुलामी से हमेशा आजादी लेने के लिए। हुकूमत इदारों से 1 साल की गारंटी की भीख मांग रही है। निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए पिंडी इस्लामाबाद में मईशत दानों के इंटरव्यू किए जा रहे हैं। शेख रशीद ने बता दिया, साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि बेहतर है लॉन्ग मार्च से पहले इंतखाबात की तारीख आ जाए, वरना इलेक्शन में जितनी देर करेंगे अपनी कब्र खो देंगे। कान खोल कर सुन लो, इदारे सोए हुए नहीं हैं। निगरान वजीर आज़म के लिए मईशत दानों के इंटरव्यू पिंडी इस्लामाबाद में हो रहे हैं। 31 मई से पहले फैसले आएंगे। बेहतर है लॉन्ग मार्च से पहले इलेक्शन की डेट आ जाए, जितनी देर करेंगे उतनी सियासी कब्र खो देंगे। हुकूमत इनसे चल नहीं रही, भीख मांग रहे हैं अदारों से कि हमें 1.5 साल की गारंटी। इसी सूरत पे लॉन्ग मार्च को रोका जाए, दरमियानी रास्ता दिया जाए। हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ और आसफ जरदारी फरियाल, इनके केसेस के विड्रॉल तैयार हो रहे हैं। प्रोसिक्यूटर FIA में अदालतों में जाके कहेंगे कि हम ये केस नहीं लड़ना चाहते। कान खोल के सुन लो, अदारे सोए हुए नहीं हैं, बेखबर नहीं है, बाखबर हैं। आप ना नैब का कुछ बिगाड़ सकेंगे, ना FIA का, ना ANF का। अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शन का इरादा नहीं। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह कहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इंतखाबात नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने 7 माह मांगे हैं। इमरान खान हुकूमत नहीं, रियासत के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। लबो लहजा किसी और तरफ इशारा कर रहा है। इस्लाहात भी है जो बहुत अहम है, उनके सिवा इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन 7 महीने मांग रही है, कम अक्टूबर नवंबर तक तो कोई ऐसा इरादा हमारा नहीं है। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ नहीं चला रहा है, रियासत के खिलाफ चला रहा है। लबो लहजा किसी और तरफ। डॉलर की उड़ान, महंगाई का तूफान, हुकूमत परेशान। अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ओपन मार्केट में डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। ओपन मार्केट में डॉलर 200 रुपये 50 पैसे पर दस्तयाब है। शहबाज हुकूमत आने के बाद से अब तक ओपन मार्केट में डॉलर 70 रुपये महंगा हो चुका। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 65 पैसे इजाफे से 198 रुपये 39 पैसे पर बंद हुआ। शहबाज हुकूमत में इंटरबैंक में डॉलर 16 रुपये 37 पैसे महंगा हो चुका है। फॉरेक्स डीलर्स के दावों के बरक्स ओपन मार्केट में डॉलर 204 रुपये तक पहुंच चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर शनाख्ती कार्ड के साथ 204 और बगैर शनाख्ती कार्ड 205 पर बेचा जा रहा है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि जब तक फैसले नहीं लेंगे गैर यकीनी सूरत हाल रहेगी और डॉलर पर दबाव रहेगा। IMF से डील के लिए इस हुकूमत ने सख्त फैसले लेने हैं। मुआशी माहिर मुज़म्मिल असलम कहते हैं फैसला साजी ना होने से डॉलर ने डबल सेंचुरी कर ली।
پہ انہوں نے لینے ہیں بڑے سخت ڈیسیزن، اور اس سخت ڈیسیزن کے بیچ میں سبسڈی اس کا متعلق کیا ہم نے کرنا ہے. IMF کا ساتھ بہت ضروری ہے. پیسے تو وہ ان کے تھوڑے سے ہیں، $2 بلین انہیں دینا. چیزیں کہہ رہے ہیں IMF وغیرہ، اس پہ ان سے ڈیسیزن نہیں ہو رہا. جب تک ڈیسیزن نہیں لیں گے غیر یقینی صورتحال ہے وہ دور ہوگی. ڈالر پریشر میں ہی رہے گا. 5 ہفتوں میں تو کیا ہی کچھ نہیں. بلیم گیم کرتے رہے کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا. اب ڈالر کی مہنگائی کے بعد اگلے 24 گھنٹے میں حکومت پاکستان تیل کی قیمتیں بھی بڑھا سکتی ہے، بجلی کی قیمتیں بھی بڑھا سکتی ہے. اگلے 3 سے 4 دنوں میں انہوں نے بہت سخت فیصلے کرنے. سیاسی بحران ایک اقتصادی بحران کی طرف لے کے جا رہا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی اضافہ میں بھی اضافہ ہوگا، بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور آنے والا جو بجٹ ہے وہ بھی IMF کی کنسلٹیشن سے بنایا جائے گا. یہ خاصا مشکل بجٹ ہوگا کہ کوئک ڈیسیژن میکنگ سے اس سے نکلا جا سکتا ہے، ورنہ صورتحال مزید گمبھیر ہوتی چلی جائے گی. انہوں نے میری ٹیم کے تمام کاموں کو ختم کر دیا. عمران خان کا رد عمل. چیئرمین PTI نے ٹویٹ کیا، امریکی حمایت یافتہ رجیم چینج سے پہلے 6% شرح نمو کے قریب تھے. سازشی ٹولے کی واحد ترجیح NRO 2 حاصل کرنا ہے. ملک میں بدترین معاشی بحران. شہباز حکومت 5 ہفتے بعد بھی معیشت سنبھالنے میں بری طرح ناکام. ڈالر کی قدر آسمان پر. سٹاک مارکیٹ مسلسل شدید مندی کا شکار ہے. کھانے پینے کی چیزیں مزید مہنگی، مگر نون لیگ اپنی تشہیری مہم میں مصروف ہے. تباہی کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دینے کی کوشش. مالی سال 2017-18 کے حالات سے موجودہ معاشی آشاریوں کا تقابلی جائزہ. پیٹ کنٹینٹ میں نون لیگ ہی معیشت ٹھیک کرے گی کا ڈھول بجنے لگا. کوہاٹ جلسے میں عمران خان کے خطاب کے دوران جیو نیوز نون لیگ کا اشتہار بار بار دکھاتا رہا. کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت اور معاشی اعداد و شمار سے نون لیگ کی کارکردگی شاندار دکھائی جاتی رہی. تاثر دیا گیا کہ نون لیگ کے دورے حکومت میں معاشی حالات زبردست تھے اور اب بھی نون لیگ ہی مرد بحران کا کردار ادا کرے گی. مزید 2 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، لیکن اب ظلم کا دور ختم ہو چکا. بدحالی کو خوشحالی میں پہلے بھی بدلا تھا، پھر بدلیں گے انشاءاللہ. ایک جانب ملک بدترین معاشی بحران کا شکار ہے تو دوسری جانب شہباز حکومت اخبارات کو کروڑوں روپے کے اشتہارات دے کر قوم کا پیسہ لٹکا رہی ہے. اس پر شہریوں کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے کہ شہباز حکومت اخبارات کو کروڑوں روپے کے اشتہارات دے کر قوم کا پیسہ لٹا رہی ہے، اور عام شہریوں کی بھی اس پہ رائے سامنے آئی ہے اور کافی غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے. بدترین معاشی بحران ہے. الفت مغل کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. ملک کی معیشت بدترین تنزلی کا شکار ہے. ڈالر کی اڑان ہے کہ قابو میں نہیں آ رہی. دوسری جانب حکومت ہے کہ مہنگے ترین اشتہارات دے کر اپنی پبلسٹی کیے جا رہی ہے. اس پر عوام کیا رائے رکھتے ہیں، آئیے عوام سے جانتے ہیں. عوام سب جانتے ہیں، اپنے مجرم پہچانتے ہیں. معاشی صورتحال اور یہ شیخ خرچیاں کروڑوں روپے کے اشتہارات، یہ بالکل بھی فیئر نہیں ہے. عوام کا پیسہ یوز کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کو بس اللہ ہدایت دے. ملک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے. کپڑے کیوں بیچنے ہیں؟ فلائٹ بیچ کے لے ہیں نا، جو پیسے ادھر سے لے کے گئے. سب پبلسٹی اسٹنٹ ہے، سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، صرف اپنی جیبیں بھر رہے ہیں. سراسر فضول خرچی اور شو بازیاں. شہباز شریف کی میرے خیال سے سستی شہرت کا ایک حربہ ہے. غریب کا پیسہ ہے جو اس پہ لگایا جا رہا ہے. لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے اور اتنے مہنگے اشتہارات لگا رہے ہیں. ادھر PTI رہنما عمران اسماعیل کی خبر چلانے پر مریم نواز کے حکم پر پیمرا نے ARY کو نوٹس جاری کر دیا. مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا کہ ARY اور عمران خان فتنے ہیں، ان سے ویسے ہی برتاؤ کیا جائے. سابق گورنر سندھ نے کہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو گیا. شہباز شریف نے سوئمنگ پول کی مرمت پر 7.5 کروڑ خرچ کر ڈالے. خبر پر قائم ہوں. رات کے 2 بجے ہوئے. سوئمنگ پول کی مرمت کا کام جاری ہے، کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے. ان کو عیاشی نہیں لگی کہ ARY نے نیوٹرل ہو کے حق اور سچ کے اوپر بات کی ہے. ان کی مقبولیت میں بھی بنائے اضافہ ہوا. خبر چلانا جرم بن گیا. آزادی صحافت نون لیگ کے لیے گلے کی ہڈی بن گئی. مریم نواز کی خواہش پر پیمرا نے ARY نیوز کو نوٹس بھیج دیا.
मुस्लिम लीग नून पुरानी रविश पर कायम। PTI रहनुमा इमरान इस्माइल का शहबाज शरीफ पर ट्वीट क्यों चलाया? मरियम नवाज ARY न्यूज पर चढ़ दौड़ी। मैंने ट्वीट की थी जिसमें स्विमिंग पूल की मुरम्मत का काम जारी है, करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर सकता हूँ। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, इमरान खान और ARY से किसी फितने की तरह निमटना चाहिए। हुक्म दिया, पैमरा को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। पैमरा को भी जैसे हुक्म का इंतजार था। मरियम नवाज के ट्वीट के 24 घंटे के अंदर ARY न्यूज को नोटिस जारी कर दिया। इमरान इस्माइल ने ट्वीट किया था कि मुल्क दिवालिया हो गया, शहबाज शरीफ स्विमिंग पूल की मुरम्मत करवा रहे हैं। वजीर आजम हाउस में स्विमिंग पूल पर 7.5 करोड़ खर्च कर दिए गए। मुल्क की मईशत डूब रही है, अखराजात कम करने की बात हो रही है। डॉलर 200 से ऊपर चला गया, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करके इनको याशी के लगी कि ये जहर उगल रहे हैं। ARY को अंडर प्रेशर लेने की कोशिशें कर रहे हैं। जिस तरह ARY ने न्यूट्रल होकर हक और सच के ऊपर बात की है, उनकी मकबूलियत में भी पनाह इजाफा हुआ। साबिक गवर्नर का ट्वीट दूसरे चैनल्स पर भी नशर किया गया था, लेकिन बिजली सिर्फ ARY पर गिरी। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम का कहना है कि नून लीग ने झूठी तशहीर में अवाम के अरबों रुपए उड़ा दिए हैं। नून लीग तशहीरी मुहिम में GDP 4% दिखा रही है। आदादो शुमार के मुताबिक रवा माली साल GDP 5.97% रहेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास GDP ग्रोथ में इजाफे का इम्कान है। रवा माली साल के दौरान GDP ग्रोथ 5.9% रहने का इम्कान है। गुज़श्ता माली साल के दौरान GDP ग्रोथ 5.7% रिकॉर्ड हुई थी। रवा माली साल खिदमात के शोबे में कारकर्दगी 6.19% की सतह पर रही। रवा माली साल के दौरान सनती शोबे की ग्रोथ में मामूली कमी का इम्कान है। सनती शोबे की ग्रोथ 7.80% से कम होकर 7.19% रहने का इम्कान है, जबकि ज़रई शोबे की ग्रोथ बढ़कर 4.4% होने का इम्कान है। माली साल ज़रई शोबे की ग्रोथ 3.4% की सतह पर रिकॉर्ड हुई थी। नून लीग ने झूठी तशहीर में अवाम के अरबों रुपए उड़ा दिए। माहिर माशियात मुजम्मिल असलम का ये कहना है। उन्होंने कहा कि नून लीग तशहीरी मुहिम में GDP 4% दिखा रही है, जबकि अदादो शुमार के मुताबिक रवा माली साल GDP 5.97% रहेगी। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अभी आपको लिए चलते हैं पहलवानों के शहर गुजरांवाला में, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही है। पिंडाल में इस वक्त मनाजिर आप देख सकते हैं। अवाम का एक बहुत बड़ा इज्तिमा वहां पर मौजूद है और साथ ही साथ इस वक्त मकामी रहनुमा जो है वो खिताब कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान यहाँ पर पहुँचेंगे और जलसे से खिताब करेंगे। अहमर खोकर से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अहमर, इस वक्त क्या मनाजिर आप देख रहे हैं और ये कहिएगा मरकज़ी कायदीन के खिताब कब शुरू हो जाएंगे? देखिए, जो सीनियर कायदीन है वो पहुंचना शुरू हो गया है। मुसल्लह चीमा यहाँ पर पहुंची हैं और इमरान खान के बारे में 7:30 बजे तक वो यहाँ पर आ जाएंगे और 8 तक उनका खिताब हो जाएगा। तो यहाँ का एक जमे गफीर मौजूद है। ख़वातीन जी, अहमर को रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहलवानों का शहर है गुजरांवाला, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जलसा कर रही है और पिंडाल में इस वक्त शुरका की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, खवातीन, मर्द हजरात सब वहां पर पहुंचे हैं कप्तान की हिमायत के लिए। और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जिसके बाद वो जलसे से खिताब भी करेंगे। इस वक्त मकामी रहनुमाओं के खिताब का सिलसिला जारी है। अहमर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। अहमर, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं और क्या कहा जा रहा है, इमरान खान कब तक पिंडाल में पहुंचेंगे? देखिए, इसमें पंडाल के मनाजिर है कि गुजरांवाला जिना स्टेडियम के अंदर अवाम का जमे गफीर है। खवातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और अपने कायद इमरान खान के खिताब का इंतजार करें कि कब वो आएंगे और उनका खिताब सुनेंगे। मर्दों की तादाद यहाँ पर बड़ी मौजूद है, बच्चों की तादाद मौजूद है और बुजुर्ग भी यहाँ पर आए हैं। पंडाल के अंदर पार्टी परचम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लहराए जा रहे हैं और पाकिस्तान का परचम भी यहाँ पे लहराया जा रहा है। अब कुछ देर कबल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सीनियर रहनुमा मुसर्रत चीमा वो यहाँ पर आई, तो उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना था कि रास्ते में, क्योंकि इस जलसे की जो जानिब GT रोड लगता है कि मेन रास्ता,
उसके दोनों एतराफ को इंतजामिया की जानिब से, गुजरांवाला इंतजामिया की जानिब से बंद किया गया है, जिसके बाद शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना पेश आ रहा है। आवाम जो है यहाँ पर पहुँच नहीं पा रही और बाकायदा तौर पर स्टेट से अनाउंसमेंट की जा रही है मुतअद्दिद बार कि इंतजामिया उस रास्तों को खोल दे और बाकायदा तौर पर जो यहाँ पर जलसा गाह के दरवाजे हैं, 6 दरवाजे हैं, उनको भी बंद किया गया है इंतजामिया की जानिब से। स्टेट से अनाउंसमेंट की जा रही है कि उनको भी खोल दें। पंडाल में जो है इस तरफ आवाम का जमे गफीर है और इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रहे कारकुनान इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। बड़ी तादाद में अवाम जलसागाह में मौजूद है। इंतजार किया जा रहा है मरकजी क़यादत इमरान खान का, कब वो यहाँ पे पहुंचेंगे और कब आवाम से खिताब करेंगे। हमें बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट arvynews.tv। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।